Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. MSc Semester 4th, पेपर सेकंड यूनिट 5th, मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट के पार्ट 17 में आपका स्वागत है। हमने 16th पार्ट में फ्रीज रीअरेंजमेंट क्या होता है, क्या इसकी मैकेनिज्म है, किस तरह से ये इंटर और इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इनकी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को अफेक्ट करती है। उसमें हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट देखा। इसी क्रम में नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के प्रोडक्ट फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है, वो है हमारा रेशियो ऑफ द starting material. In the freeze rearrangement, we use equimolar amount of esters and Lewis acids. However, in some cases, as to the rearrangement of glucosol, we generally use 2 moles of AlCl3 per mole of the acetate. Also, the ratio of the product has been influenced by the ratio of the ester and catalyst. The freeze rearrangement can also be carried out photochemically by exposure to UV light. No catalyst is needed. Here it proceeds by intramolecular free radical mechanism in which the attacking moiety is RCOO free radical. नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर एंड इम्पॉर्टेंट रोल इज प्लेड by the nature and the position of the substituent in the aromatic nucleus of the ether. The presence of a meta-directing group tends to retard the reaction from the following example, in which methyl group is present in all the 3 different positions. If it is possible to know the effect of the position of the group in the aromatic nucleus to the product, इसमें हम ये देखें कि जैसे हमने ये लिया ऑर्थोमेथाइल फिनाइल एसीटेट, इससे जो मेजर प्रोडक्ट हमारा बनेगा कीटोन, वो बन जाएगा ये पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से मेटा मिथाइल फिनाइल एसीटेट अगर हम लेते हैं तो इससे मेटा मेजर प्रोडक्ट जो है वो हमारा मेटा पोजीशन पे, और पैरामिथाइल फिनाइल एसीटेट अगर हम लेते हैं तो एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट बनेगा हमारा पैरा प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशंस। जनरली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू direct synthesis of aromatic hydroxy ketones from the phenols due to the formation of the insoluble aluminum phenoxide. However, the freeze rearrangement provides the important method for the synthesis of hydroxy ketones. फ्रीज रीअरेंजमेंट जो है इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये है कि इससे हम जो है हाइड्रोक्सी कीटोन्स का फॉर्मेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी कीटोन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है फ्रीज रीअरेंजमेंट। सबसे बड़ी एप्लीकेशन इसकी यही है। फर्दर इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द रिक्वायर्ड आइसोमर बाय डूइंग proper choice of the above
थ्री रिएक्शन कंडीशंस। जो भी हमारी रिएक्शन कंडीशंस हैं उनके साथ में हम जो भी आइसोमर को चाहें इससे रिक्वायर्ड आइसोमर फॉर्मेशन हो जाता है। ऑल्सो द रिएक्शन इज यूजफुल when it is not possible to produce a single isomer because stem steam dilution and distillation can be used to separate the two isomers from each other. The orthoisomer having low boiling point due to intramolecular hydrogen bonding will distillate over first followed by the पैरा आइसोमर। पहले ऑर्थो आइसोमर डिस्टिलेशन में आ जाता है और फिर उसके बाद में पैरा आइसोमर हो जाता है। तो ये हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो शोइंग चिलेशन, इसके अंदर चिलेशन होगा और एक ही रिंग के अंदर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फ्रीज रीअरेंजमेंट हैज़ बीन extend to the esters of enols to form 1,3-diketones. Example, isopropenyl acetate on heating at about 500 degree centigrade isomerize to acyl acetone. acyl acetone के अंदर जो है ये isomerize हो जाते हैं। If the enol ester are recycled, beta diketones may be formed in the quantitative yield. The main application of the freeze rearrangement is the synthesis of adrenaline, which is the heart heat stimulant। हार्ट स्टूमुलेंट होता है एड्रिनल। द मेन प्रोडक्ट या मेन एप्लीकेशन of the freeze rearrangement is the synthesis of the adrenaline which is the heart stimulant, जो कि हार्ट को स्टूमुलेट करता है, वो हम इससे बनाते हैं एड्रेनलिन कैटाकॉल। इसकी रिएक्शन कराई हमने ClCH2COCl से पिरिडीन की प्रेजेंस के अंदर। तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जो कि AlCl3 और CS3 की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करता है और फिर कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करके ये एड्रेनलिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा एड्रेनलिन बनता है। यूजफुल ऑफ सिंथेसिस ऑफ साइनाइडिन क्लोराइड की सिंथेसिस में भी यूजफुल होता है प्रोडक्ट। तो इस तरह से जो है वो हम इसको बना सकते हैं। फिर इसके बाद में इसके अंदर है फोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट। वन कैन कैरिड आउट फ्रीज रीअरेंजमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन होती है फोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट। ऑर्थो प्रोडक्ट जो है एस्टर जो है वो लाइट की प्रेजेंस के अंदर C2H5OH की प्रेजेंस में ऑर्थो और पैरा कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। मैकेनिज्म अगर हम देखें, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट हैविंग फिनोल इज irradiated, the irradiated solution does not show the presence of cross product. This fact reveals that the photofreeze rearrangement is an intramolecular process. The reaction is assumed to take place by the ester followed by its dissociation into radicals within a solvent case. तो इसके अंदर जो है वो रिएक्शन को अज्यूम्ड अगर हम करें एस्टर टेक प्लेस बाय द
ester followed by its dissociation into radicals. तो विद इन अ सॉल्वेंट केज तो ये रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी. रीअरेंज्ड products are formed by the recombination of the radicals before diffusion from the solvent cage. तो इसके अंदर अगर हम देखें कि किस तरह से जो है वो एस्टर हमने लिया, ये एस्टर जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस के अंदर, ये अल्ट्रावायलेट लाइट है, इसकी प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन चलता है. एक सॉल्वेंट केज का फॉर्मेशन होता है जिसपे कि ऑक्सीजन और कार्बन दोनों पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं. तो ये एक अनस्टेबल स्टेज होती है. इस अनस्टेबल स्टेज के बाद में इसके अंदर फिर हाइड्रोलिसिस होता है और हमारा एक कीटोनिक ग्रुप बनता है और दूसरा COR. फिर ये फर्दर हाइड्रोलाइज होके कीटोनिक ग्रुप अल्कोहल के अंदर चेंज होता है और COR का फॉर्मेशन इससे हो जाता है. तो इसके जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं साथ में वो पैरा पोजिशंस पे बनते हैं. और इस तरह से जो है फ्रीज रीअरेंजमेंट, फोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट होता है जिसके अंदर की रिएक्शन जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस के अंदर होती है. और इसकी मैकेनिज्म में जैसा कि हमने देखा कि ये जो है वो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस के कारण होता है और इसके अंदर एस्टर जो है वो डिसोशिएट होता है रेडिकल्स के अंदर. तो ये रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ जैसा कि हमने देखा. सॉल्वेंट केज बनता है और ये सॉल्वेंट केज जो है वो अनस्टेबल होता है और हाइड्रोलिसिस पे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है. तो ये फ्रीज रीअरेंजमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है वो फ्रीज रीअरेंजमेंट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रीअरेंजमेंट है जिससे कि हम हाइड्रोक्सी कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं. और हाइड्रोक्सी कीटोन्स के अलावा एड्रेनलिन जो कि हार्ट को स्टिमुलेट करती है उसका फॉर्मेशन भी इसी से किया जाता है. तो इस तरह से हम फ्रीज रीअरेंजमेंट से बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट जो है इसी तरह के जो रीअरेंजमेंट्स हैं और कई सारे उनमें कई इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट बनते हैं जो कि इंडस्ट्रियल तौर पे कई चीज़ों को बनाने के अंदर काम में आते हैं. तो ये मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रीअरेंजमेंट्स हैं जिनसे कि हम अलग अलग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो आज के चैप्टर में इतना ही, आज के लेक्चर में